Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about the recent Los Angeles fire, which has been very much in the news. I hope you are aware of that. If you are reading any newspaper, if you are reading editorial or any newspaper or watching any news channel, I'm sure you must have seen this very much in the news. So in today's class, we are going to discuss mostly from academic point of view. ठीक है? तो मैं आज डिस्कस कराऊंगा लॉस एंजलिस फायर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से. And we will discuss things around it. Why it happened, what is the location where you will find Los Angeles, why it is important. These things we will be discussing it. We will discuss a little bit of geography aspect as well and GK aspect. So am I audible, visible? Everything is fine? मेरी आवाज आ रही है? So if I am audible and visible, please write yes in the comments so that we can start our session. Okay. So now, can you please tell me, can anyone tell me, where do you find Los Angeles? In which part of America? मतलब अमेरिका के कौन से हिस्सा में आपको लॉस एंजलिस मिलेगा, which you will find in Los Angeles burning, like forest fire is happening and all. तो अगर कोई बता देगा, I'll be very happy. And why is Los Angeles famous at the world level? Yes, yes, कैलिफोर्निया प्रोविंस से कहाँ पे मिलेगा? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहाँ पर? And why it is famous? Why Los Angeles is famous? If you tell me, I'll be very happy to know. Yes. तो एक दो चीज और बता देता हूँ. This is our YouTube channel. So please, first of all, please subscribe to the channel if you have not subscribed yet. Go to the live section. मैंने कल yesterday को एक कॉलेजियम सिस्टम पे क्लास ली थी. Please watch it. This is very very important. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, if you have not watched it, please go and watch it. This is important for every exam. किसी भी एग्जाम में if you are reading newspaper, editorials, कॉलेजियम सिस्टम अक्सर पूछे न्यूज में रहते हैं, पूछे जाते हैं एक्सेट्रा. एंड टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये तो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, फॉर ऑल एग्जाम. ठीक है. सो आप नीचे से लेकर के ऊपर तक का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सो फ्रॉम जीरो लेवल टू द टॉप मोस्ट लेवल, इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी एग्जाम व्हिच कंटेन्स जीके एंड करंट अफेयर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कल हम लोग एसडीजीज डिस्कस करेंगे. ओके, सो प्लीज नोट दिस. हाँ जी, so we were talking about it. We were talking कि why is Los Angeles so famous? So people have written for Hollywood. Yes, Agastya, you're right. Priyanshi, you're also right. और ये it is near to it. There is a water body. What is that water body called? हाँ, Pacific side में. Yes, Priyanshi, well, not Atlantic. किसी ने भी लिखा था Atlantic, but please correct. तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं because this is very very important and the reasons we will discuss it in today's class. Okay, so let us first begin with the map. तो ये सब चीजें तो मैप से ही समझ में आएंगे, है ना. So अगर आप देखोगे यहाँ पर इंडिया है, you can see here is India, and यहाँ पर this is USA, right? United States of America. ठीक है. So let me zoom it. ठीक है. तो US का कुछ हिस्सा, I hope you are aware, इधर भी अलास्का, है ना, वो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं. But we are actually currently discussing the mainland, जो main USA की कंट्री है. So we are discussing here, and this is actually United States of America. ठीक है. नाउ आपको पता होगा कि यूएसए हैज 50 स्टेट्स एंड दैट इज व्हाई वी हैव 50 स्टार्स हियर, है ना, इन द फ्लैग. ठीक है. और ये भी पता होगा कि देयर आर 13 स्ट्राइप्स. यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसमें 13 स्ट्राइप्स होते हैं ऑन द फ्लैग ऑफ यूएसए. एंड द रीजन इज वेरी सिंपल. 13 स्ट्राइप्स होने का रीजन ये है बिकॉज इफ यू हैव रेड द हिस्ट्री और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ईस्ट में 13 कॉलोनीज हुआ करती थी इनिशियली, विच फॉट टू बिकम इंडिपेंडेंट, है ना. फिर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑल. तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन आया है, एमएचसीटी में आया था, ये जामिया में आया था, यही कि 13 कॉलोनीज थे ना. तो 4 जुलाई 1776 को दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, है ना. सो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज made by which person? ये हम लोगों ने क्लास डिस्कस किया था. If you have watched my Sunday 8 PM class, there I had discussed it. Can you please tell me? कोई बता सकता है? तो ये मैंने क्लास ली थी संडे को 8 PM पे, ये वाली, this one. This is important for AMU, जामिया, MHCT के लिए. I'll be taking class every Sunday at 8 PM. ठीक है. तो उसमें मैंने डिस्कस किया था. Yes, Augusta, you're right. थॉमस जेफरसन. ठीक है. तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सब एग्जाम से पूछे जाते हैं. So that is why I'm covering it here. Yes.
क्वेश्चन ये था सैफी कि जो अमेरिकन डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन जो साइन किया गया था, दैट डिक्लेरेशन वाज मेड बाय होम, किसने लिखा था वो डिक्लेरेशन? थॉमस जेफरसन। ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड इट इन संडे 8 PM क्लास। तो ये सब चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। खैर, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यूएसए, सो देयर आर फ्यू थिंग्स वी शुड बी नोइंग। तो जब हम लोग अमेरिका की बात करें तो कुछ फेमस सिटीज जगह सब पता होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे, देयर इज अ वेरी फेमस सिटी कॉल्ड एज न्यूयॉर्क। ठीक है, ओके। Here you will find a city called as Washington DC. सब बेसिक चीजें हैं, मैं बता इसलिए दे रहा हूं because these are asked in the exams. ठीक है। Now please tell me some of the important organizations based in New York and Washington DC. कुछ नाम बता सकते हो? जैसे Washington DC is capital, but other than that, yes, very good. So New York में आपको UN United Nation का हेडक्वार्टर मिलेगा। Very good. UN headquarter. Yes. सैफी नोमानी एंड अगस्त से आइए, यू आर राइट। नहीं, WTO को तो जेनेवा में मिलेगा। ठीक है। और वॉशिंगटन डीसी में दो फेमस चीज का हेडक्वार्टर है। इट इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। बता सकते हो? यस। तो वॉशिंगटन डीसी में यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ओवल हाउस। ठीक है, लेकिन मतलब इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बता रहा था, तो जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हाँ। सो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। समथिंग अबाउट अमेरिका यू शुड नो। ओके, अब हम लोग चलते हैं इधर, वेस्ट रीजन ऑफ अमेरिका। इधर आते हैं हम लोग। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न रीजन ऑफ अमेरिका, इफ यू सी इट केयरफुली, तो यहां पर एक प्रोविंस है which we are going to discuss in today's class in detail. This is called as California province. प्रोविंस मतलब स्टेट। जैसे इंडिया में लोग स्टेट बोलते हैं ना, कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, बिहार, हरियाणा। सो दीज आर कॉल्ड एज स्टेट। सो दे यूज द वर्ड प्रोविंस। ठीक है, तो वहां जनरली प्रोविंस वर्ड यूज किया जाता है। तो ये कैलिफोर्निया प्रोविंस है, इतना बड़ा सा। ठीक है, एंड इसकी दो बहुत फेमस सिटीज है, दो तीन सिटीज है। ठीक है, सो दिस इज जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, ये कैलिफोर्निया प्रोविंस है, स्टेट है। उसमें 2-3 सिटीज आर वेरी फेमस। वन इज एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को, ये वाला आपने सुना होगा। ठीक है, सेकंड इज लॉस एंजलिस, और एक और है सैन डियागो। ठीक है, बट दीज टू आर मोर फेमस, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ why we are discussing both San Francisco and Los Angeles is important. तो अभी जो आग लगी है वो यहाँ लगी है, लॉस एंजलिस सिटी में। एंड दिस इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ, लाइक द प्लेस ऑफ हॉलीवुड, है ना, और सिटी ऑफ हॉलीवुड कह लो, और whatever word you can use. Like we have Bollywood के लिए famous is Mumbai, और earlier called as Bombay, or now called as Mumbai. Similarly, Los Angeles के लिए the city famous is city of Hollywood, and this is the place where actually very famous celebrities, Hollywood stars and all live. ठीक है, and here also Oscar awards are given, which also we are going to discuss. तो यहीं Oscar award भी दिया जाता है, यहाँ बड़े बड़े celebrities रहते हैं हॉलीवुड के and all. तो what we have seen it recently, जब the forest fire आया, we have seen a lot of Hollywood stars losing their home also. तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। Okay, so we'll discuss it in detail. मैं आपको मैप इसीलिए दिखा रहा हूँ। दूसरी चीज ये, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, here you will find San Francisco. तो ये जो है सैन फ्रांसिस्को बे है, ये वाला जो एरिया है, अगर आप ऐसे देखोगे, इसको सैन फ्रांसिस्को बे कहते हैं, और ये सैन फ्रांसिस्को सिटी है। इस एरिया में, दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? दिस रीजन, आई एम मेकिंग इट रफ, is also known as what? This region is also known as Silicon Valley of America. Yes, Silicon Valley. Why it is called as Silicon Valley? तो ये इससे कनेक्टेड है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि गॉड फॉरबिड इफ लॉस एंजलिस की फायर ज्यादा बढ़ गई तो इट माइट रीच देयर, बट आई एम जस्ट सेइंग इट लाइक फॉर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग लॉस एंजलिस, सो वी विल अंडरस्टैंड दिस आल्सो। बे एरिया मतलब ऐसा जो समुद्र का ऐसा हिस्सा होता है ना, इसको बे कहते हैं, ऐसे अंदर जो आता है हिस्सा, that's called as bay. Yes, IT hub, yes. So basically we are saying it, this is called as Silicon Valley because silicon जो होता है ना, वो एक semiconductor होता है. This is a semiconductor which is used in electronics industry. Electronics industry. इसका कुछ स्पेशल फीचर होता है, दैट इज व्हाई सिलिकॉन इज वेरी मच यूज्ड। जैसे जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आपने सुना होगा नहीं ये नाम, यू मस्ट हैव हर्ड इट, इंटीग्रेटेड सर्किट। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट। You will find it in every digital device, laptop, computer, mobile, सब में सिलिकॉन का या इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। So silicon is very helpful in making that.
इसीलिए उसका नाम सिलिकॉन वैली पड़ गया है। और यहाँ आपको हेडक्वार्टर मिलेगा बहुत फेमस का, जैसे गूगल का यू विल फाइंड, यूट्यूब का हेडक्वार्टर, ठीक है। देन आई थिंक मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, इंस्टाग्राम वगैरह सब, यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर हियर। इसी जगह आपको यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ द फेमस जायंट्स लाइक है ना, इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स, ठीक है। तो ये एक बस छोड़ करके अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को देखोगे, सो यू विल फाइंड इट नॉर्थ, थोड़ा सा नॉर्थ में। आई विल शो माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, रेमोंड करके कुछ जगह है, वी विल शो इट इन वॉशिंगटन स्टेट, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये वॉशिंगटन डीसी है, ये जो है वॉशिंगटन डीसी, दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूएसए, ओके। और एक यहां पर नॉर्थ वेस्ट में ये वाला देखो, ये वॉशिंगटन स्टेट है, ये वॉशिंगटन पूरा एक प्रोविंस है, ठीक है। सेम नाम का है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दोनों एकदम दूसरी जगह है, तो दे आर पोल्स अपार्ट। और वॉशिंगटन प्रोविंस में एक बहुत फेमस सिटी है सिएटल, तो यहाँ लिखा हुआ भी है सिएटल, है ना। So this you have to be clear. Washington DC is a separate city which is the capital of US. और एकदम पोल्स अपार्ट उधर है वॉशिंगटन स्टेट या वॉशिंगटन प्रोविंस, जिसमें एक सिटी वेरी फेमस सिटी है सिएटल, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। है, so let's move on further. So we are talking about here now. अभी जो main topic है we are going to discuss is the fire that has actually brought sorrow or misery in Los Angeles, the Hollywood city. तो अगर आप देखोगे, so Los Angeles fires, 24 dead as fire crews try to contain Los Angeles blaze before winds return this week. अच्छा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो कई जगह पे लॉस एंजलिस की जगह LA मिलेगा लिखा हुआ, कैपिटल LA. So when you read any newspaper or any website and all, तो LA करके लिख के छोड़ देते हैं, तो आप समझ लेना they are talking about Los Angeles. LA fire ऐसे लिख रहे हैं, LA fire बस। तो अब लोग को कई बार समझने में दिक्कत होता है कि क्या चीज बात हो रही है। So it is talking about Los Angeles fire. So you have to be crystal clear. ये आज ही आया था फर्स्ट न्यूज़पेपर में। नाउ तो अब हम आपको बता रहे हैं कि कैलिफोर्निया की जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कौन किसका किसका हेडक्वार्टर है, सो लेट मी शो। तो क्लियर, अब मेरी आवाज क्लियर है? फिट यस, प्लीज राइट यस। समटाइम्स सम टेक्निकल इश्यूज हैपन। हाँ ठीक है, आई थिंक इट्स करेक्ट, इट्स फाइन। So thanks for correcting me, for helping me out, for informing at the right time. चलो, है ना। So yes, so we were talking about this. कभी कभी हो जाता है some technical issue, ठीक है। So we were saying it this कि अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखोगे, so माइक्रोसॉफ्ट का वॉशिंगटन स्टेट में है, वॉशिंगटन प्रोविंस में, और बाकी सबका जैसे आपका वही मैं बता रहा था, इफ यू कैन सी, है ना। तो वही कैलिफोर्निया में इस रीजन में आपको यूट्यूब का मिलेगा, फेसबुक का हेडक्वार्टर मिलेगा, गूगल का हेडक्वार्टर मिलेगा, और वॉशिंगटन स्टेट जो है इसमें आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, रेडमॉन्ड जगह है, ठीक है। सो हियर वी आर सेइंग इट वॉशिंगटन स्टेट या वॉशिंगटन प्रोविंस, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी वॉशिंगटन, और जो यूएस की कैपिटल है वो ये है वॉशिंगटन डीसी, दिस इज द कैपिटल सिटी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सो यू डोंट नीड टू कंफ्यूज। और मैंने एग्जाम्स में देखा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसी इन वॉशिंगटन डीसी, तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। सिंस इट इज इन द न्यूज, ये सब पूछ सकते हैं कि कैपिटल क्या है ना, लॉस एंजलिस एंड ऑल, कैलिफोर्निया, दे कैन आस्क क्वेश्चंस अराउंड इट, इसलिए मैं सारी चीजें डिस्कस करा रहा हूं, ओके। So we are talking about this,
एंड नाउ लेट्स मूव ऑन। तो हम लोगों ने सिलिकॉन वैली बताया कि नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में वो रीजन है ना, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। यू विल फाइंड दिस मेनलो पार्क, ये सब जो है ये सब वही उसका हेडक्वार्टर है। यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर एक्चुअली ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, मेटा एंड ऑल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। ओके, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है लॉस एंजलिस से, आई थिंक 200-300 किलोमीटर होगा, मे बी नॉट मच, है ना। एंड सिलिकॉन वैली वही माइक्रो सिलिकॉन इज यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड चिप्स एंड ऑल, है ना, इसीलिए सिलिकॉन वैली उसको कहते हैं। लार्जेस्ट हाईटेक कॉर्पोरेशन, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स हैं। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। लाइक वी हैव अच्छा, इंडिया का सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? आई होप यू कैन आंसर इट, दिस इज वेरी इजी। प्लीज आंसर मी इन द कमेंट। ओके, सो जो न्यूज आ रही थी उसमें यह था कि समवेयर अराउंड $150 बिलियन का लॉस हुआ है। दैट इज व्हाट यू शुड नो। एंड $150 बिलियन मींस 10 to the power 9, है ना, कितने डॉलर्स का नुकसान हुआ है। सो द लॉस इज समवेयर अराउंड दिस। दैट वाज वेरी मच इन द न्यूज। हाँ, बैंगलोर इज इंडिया सिलिकॉन वैली, राइट अगस्त्य, यू राइट। ओके, हाँ, कुछ न्यूज में इस तरह आ रही थी कि $150 बिलियन के इकोनॉमिक लॉस हुआ। इट विल टेक 10 years टू रिकवर, 10 साल लग जाएगा वापस आने में। तो दैट इज व्हाट इज वेयर कमिंग इन द न्यूज एंड ऑल। तो जैसे एलए लिखा ना है, आप लोग समझते हैं एलए क्या हो रहा है। तो एलए मतलब लॉस एंजलिस। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, हेडलाइंस में। ओके, तो अब देखो आपको एक चीज समझना है कि कितना डैमेज हुआ है। तो कई जो जैसे हिंदुस्तान टाइम्स की आर्टिकल थी, इट वाज सेइंग कि 4% ऑफ कैलिफोर्निया के एनुअल जीडीपी को डैमेज हुआ है, अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन एंड ऑल। अब कैलिफोर्निया की सिर्फ यानी उस स्टेट का, और कैलिफोर्निया स्टेट का जो जीडीपी है वो नियरली अराउंड इंडिया जीडीपी है। आप समझ रहे हो, इंडिया की जीडीपी भी इतना ही है, $3.94 ट्रिलियन लगभग, अराउंड इट रफली। सो जितना एक स्टेट का, अमेरिका के एक स्टेट का जो जीडीपी, बिकॉज वो बहुत बड़ा लार्ज स्टेट है एंड इट हैज एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। सो समझ लो इतना है। जीडीपी ऑफ कैलिफोर्निया इज रफली सिमिलर टू द इंडियाज जीडीपी, एंड उसका 4% लॉस हो गया है दिस लाइक दिस में डिजास्टर में और फायर में एंड ऑल। सो दैट इज व्हाट दीस रिपोर्ट्स वेयर कमिंग इन। तो ये तो एक जस्ट आइडिया लेना है ना। कॉस्टलीस्ट डिजास्टर इन यूएस हिस्ट्री है, इतना बड़ा डिजास्टर कभी नहीं आया जिसमें इतना ज्यादा डैमेज हुआ, फाइनेंशियल डैमेज हुआ। दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। तो ये हमने बता दिया सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस। नाउ देखो फायर जो है ना, सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिपोर्ट्स ये 3 या 4 जगह लगी है। तो 1 है ना, 2, 3, 4, कोई एक जगह फायर नहीं है। देखो 4-5 जगह छोटा छोटा अगर आप देखोगे। सो द फायर इवन यहाँ पे भी है ना। सो 5-6 प्लेसेस, छोटी छोटी भी कहीं पे आग लगी, कहीं बहुत बड़ी आग लगी है। सो इट इज नॉट एट वन प्लेस की सारी आग एक ही जगह लगी। सो इफ यू सी रिपोर्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, सिमिलरली और भी रिपोर्ट्स आई थी कहीं बीबीसी में 3 या 4 जगह के मैप बना हुआ है। सो दे हैव शोन द मैप्स। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे न्यू चीज है वो ये है कि एक्चुअली द फॉरेस्ट फायर इज नॉट एट वन प्लेस बट एट मल्टीपल प्लेसेस, और वो कुछ कुछ गैप पर भी है। दैट इज व्हाट वाज बीइंग इन द न्यूज। एंड बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज हैं, उनका दे हैव लॉस्ट देयर होम्स। एलए मतलब वही लॉस एंजलिस फायर, आई हैव डिस्कस्ड कि वो एलए लिखेंगे कई जगह। सो दीज आर द फेमस सेलिब्रिटीज, दे हैव लॉस्ट द होम। जैसे एक पेज 6 करके वेबसाइट है, उन्होंने सबका नाम भी लिखा है कि like I hope you are more aware of this Hollywood, because I do not have much idea about Hollywood, but so these are some of the famous celebrities who have lost their homes and all. तो आप देख सकते हो, you can see and get to know। एक दो बार पढ़ लेना, maybe they can ask and all about it. Okay, एक और चीज जो मैं I saw it in the news was actually this person called as Tom Hanks. I think he's a very famous actor, and fortunately his house was survived. I think ये वाला उनका शायद घर है। एंड अगर आप देखोगे एकदम लास्ट एंड तक आग आई, एंड दिस इज एक्चुअली यस अगस्त्य, वी आर कमिंग टू द कॉज ऑफ फायर, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट 4-5-10 मिनट्स, ठीक है। तो ये चीज भी न्यूज में थी कि इनकी किस्मत थी कि इनका घर बच गया। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। एंड एक और ये न्यूज आ रही थी कि एक बहुत फेमस साइन है वो पहाड़ पर, बिकॉज वो ना पहाड़ी एरिया है, मींस देयर इज अ माउंटेनियस रीजन एंड देयर इज अ वेरी फेमस साइन ऑफ हॉलीवुड ऐसे लिखा हुआ है, बट दिस हैज नॉट बीन बर्न्ड। ये सर्वाइव कर गया है। एंड कुछ एआई की फोटो आ रही थी कि ये जल्द गया है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी, ठीक है। खैर, हाँ, अब हमको रीजन अंडरस्टैंड करना है। डाउन टू अर्थ की बहुत अच्छी आर्टिकल है, बिकॉज डाउन टू अर्थ पे क्लैट ने भी पैसेज दिया है डाउन टू अर्थ से उठा करके, ठीक है। इफ यू सी द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ क्लैट, दे हैव गिवन आर्टिकल्स फ्रॉम डाउन टू अर्थ आल्सो। तो डाउन टू अर्थ एक इन्वायरमेंट मैगजीन है, तो अगर आपको इन्वायरमेंट इससे रिलेटेड कोई चीजें
नहीं समझ में आ रही तो यू विल फाइंड, सर्च करना तो डाउन टू अर्थ पर कुछ ना कुछ आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। So they are saying it is extremely dry and that's fueling the fires. देखो actually main reason है कि ठंड है ना, December, January, February is actually famous for the cold weather in north and northern hemisphere. So currently there's a cold, तो cold से dryness भी तो होता है ना, so main जो reason है वो है dryness, ठीक है। तो पहला तो रीजन ये है, और ये मैं बताऊंगा एक वेंट चल रही है उसको भी विल डिस्कस इट। सो जब ड्राई कंडीशन होता है उसे आग लगने का चांस ज्यादा होता है, फर्स्ट। सेकंड थिंग जो होता है कि देखो अगर आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी 2020 में भी 2025 इयर्स बैक आल्सो इसी टाइम पर रफली जनवरी फरवरी के आसपास वी हैड सीन फॉरेस्ट फायर, बट वो उतना डेंजरस नहीं था। सो दिस वाज मोर डेवास्टेटिंग, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। अब देखो होता क्या है कि जैसे वो लिखा बता ये रहे हैं कि फर्स्ट थिंग इज कोल्ड या ड्राइनेस। दूसरी चीज ये है कि फॉरेस्ट फायर जो होता है वहां पे ना घनी डेंसिटी है। यहाँ पर लेट मी शो इन द मैप। तो यहाँ ये जो पूरा रीजन है ना, हाँ यहाँ पे इनफैक्ट देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे ना माउंटेन्स भी है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे माउंटेन्स को काट काट करके घर बनाया गया है। तो इफ यू कैन सी केयरफुली, अगर आप गौर से देखोगे, लेट मी शो द बिल्डिंग, देखो अगर ये भी बिल्डिंग देखोगी तो माउंटेन्स पर ही बना हुआ है, राइट। सिमिलरली अगर आप ये हॉलीवुड का देखोगे ये भी माउंटेन्स पर, यानी यहाँ पे एकदम नेचुरल रीजन है, मतलब जहाँ पे माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट होता है। तो होता क्या है, एक और चीज होती है कि फॉरेस्ट में फायर लगने का रीजन आसान होता है। रीजन क्या होता है, अगर फॉरेस्ट बहुत डेंस है, ठीक है, और एयर चल रही, बहुत तेज हवा चल रही है, प्लस कोल्ड है, तो कोल्ड से अगर ड्राइनेस आ गई, सो देयर इज चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर। बिकॉज मान लो एक पेड़ है, ठीक है, देयर इज अ ट्री एंड देयर इज अनदर ट्री, इसका शाखा इसका डाली टकराता, so when there is huge heavy density, so the two forests can actually the trees can actually hit each other and this causes friction and it can catch fire. देखो इसमें दो चीज हो सकती है, कुछ लोग कंस्पिरेसी थ्योरी भी बोलते हैं कि किसी ने आग लगा दी और समथिंग लाइक दैट। इट कैन बी टू थिंग्स, वन कि किसी ने आग लगा दी, someone has done, so I'm not sure about it because of course this is like the second is natural reason, फॉरेस्ट में अपने आप ही आग लग जाती है, ओके। एक दो और रीजन होता है जैसे एल लीनो या ला नीना, ठीक है, जैसे एल लीनो से चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर आर देयर इन लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया रीजन, वी विल डिस्कस, ठीक है, मैं बताऊंगा। बट जनरली क्या होता है, नेचुरल रीजन से भी फॉरेस्ट में अपने आप भी आग लग सकती है, अगर कोई नहीं लगाए तो भी। व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, मैंने आपको बताया कि अगर एक फॉरेस्ट है तो the trees actually the branches of the trees actually hit each other causing friction and causing fire. Yes, Agastya, we will discuss El Nino, just wait ना 5-10 minutes मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं तो उसका पेड़ एक दूसरे को हिट करता है, ठीक है। एक की डाली, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ इसका डाली निकला हुआ है और इसका डाली निकला, दोनों टकरा रहा है, हवा चल रही है, बार बार टकरा रहा है, तो लकड़ी दो टकराएगी तो आग लगती है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन है तो उसको और फेवर करता है, ठीक है। अगर हवा तेज चल रही है तो दोनों डाली टकराने के चांस ज्यादा होगा, तो चांसेस ऑफ हिटिंग ईच अदर एंड इज देयर, तो इससे फ्रिक्शन होने का, और कोल्डनेस रहेगा तो ड्राइनेस होता है, उससे ड्राई रहेगा, सो द चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर आर वेरी हाई, ठीक है, ओके। सो दिस इज, यू शुड बी नोइंग इट, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एल नीनो ला नीना आल्सो, जस्ट वेट, ओके। तो और क्या क्या बताते हैं, hydrologists in California watch the sky very closely starting in October when California water years begins and all, so late and winter are crucial to fill reservoirs and to build the snowpack and all, ठीक है। तो इसी में बता रहे हैं ट्रांसपिरेशन, हाँ, when the air is warm and dry, transpiration evaporation also suck water out of the plant soil, so that leaves dry vegetation that can provide fuel for flying embers to spread Los Angeles or early, है ना। तो ये बता रहे कि अगर वार्म और ड्राई एयर भी चलेगी तो एवापोट्रांसपिरेशन होता है और वाटर लॉस होता है ट्री से, सो व्हेन देयर इज वाटर लॉस एंड ऑल, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है कम हो जाएगा और ऑल। देखो जैसे लिखा ना कि हाँ, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एज मेजर्ड डाउन टू इतना एंड ऑल। तो अगर ड्राइनेस से क्या होता है कि पानी की मात्रा भी कम हो जाती है सॉइल में, इन सॉइल एंड एज वेल एज इनसाइड द फॉरेस्ट एंड ऑल। तो ड्राइनेस से जो है फायर लगने का चांस होता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड बी नोइंग, ठीक है, मैंने आपको जो बताया है ना। और एक और चीज मैं बताऊंगा वो है विंड, वी विल डिस्कस दैट, है ना। तो इसमें व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, तो देखिए द आउटलुक इट टेक्स इनटू अकाउंट forecast of La Nina ocean temperature was expected to develop and all. La Nina tends to mean drier condition in southern California, however not every La Nina affects California in the same way. अब देखो मैं बताता हूँ एल नीनो और ला नीना।
सो दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना, दिस इज यूएस, है ना, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ओके। मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं, बट ये बता रहा हूं यहाँ इस रीजन को क्या कहोगे, साउदर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है, इस रीजन को हम कहेंगे साउदर्न पैसिफिक ओशन, ओके। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये लिख रहे हैं साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो फेनोमेना होता है, द टू ज्योग्राफिकल फेनोमेना हैपेंस व्हिच आर अपोजिट टू ईच अदर, एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीना, ठीक है। तो जब एल नीनो होता है तो यहां पर लो प्रेशर रहेगा और यहां पर हाई प्रेशर रहेगा, ओके। लेकिन जब ला नीना होता है, ला नीना, सो यहां पर हाई प्रेशर रहेगा, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहेगा, और यहां पर लो प्रेशर रहेगा, ओके। नाउ हाउ इट इज डेवलप्ड, हाउ इट फंक्शंस, इतना डिटेल आपको नहीं जाना है, बट आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ आपको दो तीन चीज पता होगा, एक दो चीज और, व्हेन एल नीनो हैपेंस, बिकॉज ये न्यूज़पेपर में अक्सर आता है, लेट मी राइट इट विद डिफरेंट पेन्स, सेपरेट पेन से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एल नीनो के लिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं। सो व्हेन एल नीनो हैपेंस, यहां पर लो प्रेशर होगा एलपी और यहां पर होगा हाई प्रेशर। वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक का साउदर्न हिस्सा की बात हो रही है। जैसे मैं लिख देता हूं बड़ा सा, दिस इज पैसिफिक ओशन, पूरा नीचे तक। तो जो हम लोग हिस्सा की बात करें, दिस रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट इज साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है, ओके। दूसरा होता है, दूसरा फेनोमेना इसी रीजन में होता है, उसको हम कहते हैं ला नीना। इसमें यहां पर बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा एंड हियर यू विल फाइंड लो प्रेशर, ठीक है। नाउ अब मैं रेड पेन से बता रहा हूं एल नीनो का इंपैक्ट क्या क्या होता है, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ एल नीनो। एल नीनो से द फर्स्ट थिंग इज, जो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है वो वीक हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून जो जून जुलाई में आता है, इट बिकम्स गेट्स वीक, ओके, ठीक है। और ला नीना अगर आएगा तो इसका ऑपोजिट है, मैंने बता दिया, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ला नीना से साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि जब एल नीनो आता तो इस रीजन में फॉरेस्ट फायर होने का डर होता है, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया रीजन है और ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, सो देयर इज चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर, ठीक है। सिमिलरली यहां पर जैसे बता भी रहे हैं, अगर आप देखोगे, है ना, लानीना से चांसेस होता है ड्रायर कंडीशन का सदर्न कैलिफोर्निया में, इस रीजन की बात करें, सदर्न कैलिफोर्निया, है ना। तो अगर लानीना आता है तो चांसेस ज्यादा है कि यहां पर ड्रायर कंडीशन हो सदर्न कैलिफोर्निया में, जहां पर लॉस एंजलिस है। और व्हेन देयर इज अ ड्रायर कंडीशन, जहां सूखा पड़ेगा, ड्रायर कंडीशन, फॉरेस्ट फायर होने का चांस बढ़ जाता है। तो चांस बढ़ जाता है, गारंटी किसी चीज की नहीं है ना, यही वो लिख रहे हैं, लानीना टेंड्स टू मीन ड्रायर, हाउएवर नॉट एवरी लानीना अफेक्ट्स इन द सेम वे। मतलब गारंटी नहीं, लेकिन चांसेस ज्यादा होता है कि इस तरह से बिहेवियर होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट, ओके। इज इट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एल नीनो लानीना का। और क्यों होता है, मींस उतना डिटेल नहीं जाना, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए एल नीनो एंड लानीना का, ठीक है। नहीं, मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया था, इसको ठीक कर लेना। ये लो प्रेशर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में भी यहां पर हाई प्रेशर होता है, यहां पर लो प्रेशर होता है, बट ला नीना केस में वो एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। ये हाई प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और लो प्रेशर बहुत लो हो जाता है। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड इन नॉर्मल सिनेरियो आल्सो इन पैसिफिक ओशन, इन साउथ पैसिफिक ओशन, राइट साइड में ईस्टर्न पैसिफिक में हाई प्रेशर होता है और वेस्ट में लो प्रेशर होता है। बट इन केस ऑफ ला नीना, द प्रेशर्स, द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिकम्स एक्सट्रीम। और एल नीनो में अपोजिट हो जाता है, ईस्ट में लो प्रेशर होता है और वेस्ट में हाई प्रेशर, ठीक है। इज इट क्लियर, is this concept clear? Because ऐसे भी in general El Nino La Nina comes in the newspaper and all, so you should be knowing about it. I hope it is clear, ठीक है। खैर, अब कुछ न्यूज रिपोर्ट्स आ रही थी, इज इट क्लियर? कुछ क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क और यू कैन राइट, यस फाइन। अब देखो, ये भी रिपोर्ट आ रही थी कि देखो इसको फायर हाइड्रेंट्स कहते हैं। अगर इफ यू गेट अ चांस टू विजिट अमेरिका या कहीं जाओगे तो यहाँ यूएस वगैरह में रोड पर भी लगे रहते हैं, फायर हाइड्रेंट्स कहते हैं। अरे जैसा फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, उसी टाइप की चीज है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कई सारी रिपोर्ट आ रही थी कि रैन ड्राई में तो उसमें पानी नहीं था, सम पीपल वर सेइंग, और लाइक, बट फिर उसको बाद में क्रिटिसिज्म काउंटर भी किया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, एटसेट्रा एंड ऑल। सो ये सब आपको जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, है ना।
फिर अगर आप देखोगे है ना, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, ये लॉस एंजलिस है। अब देखो लॉस एंजलिस में जैसे बीबीसी की रिपोर्ट है ना कि एक हॉर्स फायर है, यहाँ आग लगी है, ईटन फायर है ना, एक मालीबाऊ में, कोई पैलिसेड फायर, ये काफी ज्यादा न्यूज में ये वाला, दिस वन पैलिसेड फायर करके न्यूज आ रहा है। ओके, पूरा लॉस एंजलिस है, बीच में हॉलीवुड हिल्स है, या बेवरली हिल्स भी यहीं पे पड़ेगा, देखो यहाँ पे भी दिखाते हैं, बीच में हियर इज बेवरली हिल्स। व्हाई इज बेवरली हिल्स फेमस? मैंने आपको बताया ये पूरा पहाड़ी एरिया है, ऑल दीज आर एक्चुअली हिली एरियाज, एंड बेवरली हिल्स इज फेमस बिकॉज ऑस्कर सेरेमनी यहीं पर होता है। ओके, देखो 4-5 जगह फायर एंड हर्स्ट फायर, ईटन फायर, वुडली फायर, पैलिसेड फायर, ये काफी न्यूज में, और इसके बीच में देयर इज बेवरली हिल्स which has not become a victim of the fire, but you should know because this is the place where Oscar ceremony happens. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कहते हैं एम्पास। तो जब we'll be having an Oscar class, we will discuss it in detail. तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज है, देखो बेवरली हिल्स लिखा ना, कैलिफोर्निया यूएस, ये बेवरली हिल्स इज इन लॉस एंजलिस, और मैंने बताया लॉस एंजलिस इज द एंटायर रीजन इज एक्चुअली माउंटेनियस रीजन एंड ऑल, ठीक है, पहाड़ों पे लोगों ने घर बनाया है एक्सेट्रा। तो यहीं पर ऑस्कर सेरेमनी होती है, एकेडमी अवार्ड्स की ऑस्कर सेरेमनी होती है। एंड देयर इज अ थिएटर, आपने इसका नाम सुना होगा, डॉल्बी थिएटर। डॉल्बी थिएटर इज देयर इन बेवरली हिल्स, which actually ये इनसाइड से ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा if you have seen ऑस्कर सेरेमनी एंड ऑल। तो ये डॉल्बी थिएटर ही, ये अवार्ड सेरेमनी अनाउंस किया था ऑस्कर का, and that is why till now we have not seen any such fire and all here, but yes, this is also a part of Los Angeles, तो ये पता होना चाहिए, just have an idea. Okay, and मैंने लास्ट ईयर के लिए, लास्ट ईयर वाले ऑस्कर अवार्ड्स के लिए I have already discussed, I have a class, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, this you can watch it, just search it. अगर इस साल मार्च से पहले आपका कोई एग्जाम है, if you are attempting any exam before March, then this is Oscar award video is very helpful. If you are attempting any exam this year which is after March, then we will be having a new Oscar award ceremony, because Oscar awards are announced in, Oscar awards है ना मार्च में अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है। So this year if we'll be having an Oscar award most likely, so we will discuss in the class, ठीक है। Okay, एक चीज और बताता हूँ, ये भी एक्चुअली काफी न्यूज हमको सुनने को मिला था, बिकॉज व्हेन आई वाज डिस्कसिंग और रिसर्चिंग अबाउट इट, कि वी हैव सीन एफबीआई, जो फॉरेन जो एफबीआई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सो दिस इज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अमेरिका, इट हैज फाउंड अ लॉट ऑफ ड्रोन्स इन दैट रीजन। तो कहां से ड्रोन आए, क्या है, तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि देखो एफबीआई इज सर्चिंग फॉर ड्रोन्स ऑपरेटर दैट डैमेज फायर फाइटिंग वाटर स्कूपर प्लेन इन लॉस एंजलिस। तो एक्चुअली क्या है, आपने देखा इस तरह की प्लेन है, सो दिस प्लेन इज यूज्ड टू डाउज द फायर, ठीक है। तो आग बुझाने के लिए ये प्लेन का यूज किया जाता है। तो जब ये प्लेन जा रही थी तो ड्रोन से टकरा गई उस फॉरेस्ट, यानी जहां पे आग लग रही फॉरेस्ट, उसके ऊपर है, ड्रोन्स भी उड़ रहे हैं। सो पीपल वे फाइंडिंग इट कि जो प्लेन है, जो वहां पर ड्रोन क्यों उड़ रहा है, सो व्हाई इज ड्रोन देयर, ड्रोन ऑपरेटर शुड नॉट बी फ्लाइंग इन दैट एरिया। तो अब एफबीआई जांच करेगी, देयर कैन बी टू थिंग, एक ये कि जो लोकल लोग हैं वो उड़ा रहे होंगे, लोकल कॉमन पीपल। फिर दूसरा एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि मे बी इट माइट हैव बीन डन बाय सम एनिमी कंट्री एटसेट्रा एंड ऑल, तो दिस कैन बी द रीजन एंड ऑल। सो अभी करंटली आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये ड्रोन वाला मामला भी न्यूज में था, सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट आल्सो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो, है ना। LA फायर्स अगेन लिखा है, LA मतलब वही लॉस एंजलिस, दिस यू शुड बी नोइंग। हाँ, एक चीज और बताते हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट सांता आना विंड्स। दिस इज आल्सो, मैंने आपको बताया ना 60 माइल्स पर आवर पर एक विंड भी चल रही है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है सांता आना, ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। which is also causing, and the chances is that it might increase or it might create the problem more, it might increase forest fire in that region. तो एक ये लोकल विंड है, इसको कहेंगे in that region called as Santa Ana, which is also causing, इसकी स्पीड है अगर आप देखोगे, so it's written here 60 miles per hour in 96 kilometers, समझो almost 100 kilometers per hour पे, this is the speed of the Santa Ana winds, है ना। तो what is the name of the localized winds blows in southern California, ठीक है, and now you can answer it because I have already told you the answer is D, ठीक है। तो ये सभी जो है ना लोकलाइज्ड विंड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, खामसिन, चिनूक, हरमटन, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा तो खामसिन यहाँ बैठता है इजिप्ट के पास, हरमटन जो है यहाँ पर नाइजीरिया वगैरह के पास, चिनूक यहाँ पर कनाडा में, ठीक है। सो दीज आर फेमस, मिस्ट्रल जो है यहाँ पे मिलेगा आपको यूरोप में, है ना, लेवांट एंड ऑल फोन, ये सब फेमस विंड्स होते हैं।
सिमिलरली यहां पर यानी सदर्न कैलिफोर्निया में सांता आना इज अ लोकलाइज्ड विंड, ठीक है। ओके, तो अब इसमें क्या है, देखो ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल है, सांता आना विंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज बिहाइंड वाइल्ड फायर्स ब्लेजिंग इन सदर्न कैलिफोर्निया। तो ये सांता आना विंड भी काफी न्यूज में थी, एक तरह की एक कैटाबैटिक विंड्स है, ठीक है। सो दीज आर पावरफुल अगेन ड्राई हॉट विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द ग्रेट बेसिन बिटवीन रॉकी एंड सियरा नेवाडा। अब ये भी समझना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सब न्यूज में अगेन यही मेन चीज है, ड्राई, जो ड्राइनेस है ना, इससे फायर लगती है, आग लगती है, ठीक है, बिकॉज में वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है सॉइल में एंड फॉरेस्ट में, एंड द चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर इज हाई। तब आप गौर से देखो, इफ यू कैन सी दिस इज द मेन लैंड यूएसए, है ना, ये भी यूएस का ही हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज अलास्का व्हिच वाज बॉट बाय रशिया, बॉट फ्रॉम रशिया बाय यूएसए, है ना, तो यूएसए रशिया ने खरीदा था, सो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ यूएसए, और ये कनाडा हो गया। तो यहां पर एक दिस इज एक्चुअली अ माउंटेन रेंज A and this is a mountain range B. कोई बता सकता है what is A and B? 1867 में आई थिंक खरीदा था अलास्का से, प्लीज चेक द ईयर। What is mountain A and what is mountain B? Somewhere here है ना, हाँ माउंटेन A is रॉकीज, ठीक है, और ये माउंटेन B जो है ना सियरा नेवाडा, है ना, सियरा नेवाडा रीजन, ठीक है। नहीं एंडीज साउथ में हो जाएगा सैपिनो मानी, वो साउथ अमेरिका में, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे रॉकीज है, यहाँ पे सियरा नेवाडा, और बीच में ग्रेट बेसिन है, ठीक है। सो लेट मी शो यू है, वो यहाँ पे की बात हो रही है, ये वाला ग्रेट बेसिन है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये ग्रेट बेसिन यहाँ बना है, ये रॉकीज है, ये सियरा नेवाडा है, ये लॉस एंजलिस है, ठीक है, दिस यू कैन सी लॉस एंजलिस से है ना। तो एक्चुअली क्या एक विंड है सांता आना, सो मैं लेट मी राइट इट, वो ऐसे बह रही, ऐसे, यहाँ पे हाई प्रेशर है एचपी, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो आपको पता होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव करती है। सो फ्रॉम रॉकीज सियरा नेवाडा के बीच में ग्रेट बेसिन है, सो दिस इज हाउ द विंड डायरेक्शन इज, और ये यहाँ पर आ रही है लॉस एंजलिस में, एंड दिस इज एक्चुअली सिंस इट इज ड्राई द चांसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ forest fire or causing fire is very high. Is it clear? I hope it is clear. And a Santa Ana winds, these winds blow when high pressure builds over the Great Basin in the area between Rockies and Sierra Nevada is and pressure is low over California's coast. ये दिखा रहे हैं कि कैलिफोर्निया के कोस्ट में यानी लॉस एंजलिस यहाँ पर लो प्रेशर है, लेट मी राइट इट LP, इस रीजन में लो प्रेशर है और इस रीजन में हाई प्रेशर है, तो हवा ऐसे बहेगी, यस, इन दिस डायरेक्शन, आई होप इट इज क्लियर। और यहीं पर लॉस एंजलिस भी है, आप देख सकते हो, जहां पे लो प्रेशर रीजन है, कोस्टल रीजन है ना, है ना, और दिस इज यहाँ पर रॉकी माउंटेन है और यहाँ पर सियरा नेवाडा है, इज इट क्लियर। और जहां से बह रही है, सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट बेसिन फ्रॉम वेयर द विंड्स कम, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द विंड, सो द नेम ऑफ द विंड इज सांता आना, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, है ना, इज इट क्लियर गाइस। और यहाँ पे जो समुंदर है ना, तो मैं दिखाता हूँ, लेट मी मेक इट अगेन, ये वाला रॉकीज हो गया, ये वाला सियरा नेवाडा हो गया, और ये वाला जो है ग्रेट बेसिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हाई प्रेशर विंड जो है यहाँ से यहाँ गई, यहाँ पे लो प्रेशर है समुद्री तट पर, और यहीं पर लो प्रेशर जहाँ पे यहीं पे लॉस एंजलिस है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर, यस, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी सिंपल वे। तो उससे क्या होगा, ड्राइनेस की वजह से, और ये लॉस एंजलिस जो ये है, ये वाली वाटर बॉडी कौन सी, पैसिफिक ओशन, है ना। सो बेसिकली दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड कि जो लॉस एंजलिस है, इट इज ऑन व्हिच वाटर बॉडी, सो द कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है, क्लियर है। सो और ये जो विंड है इसको कैटाबैटिक विंड्स कहते हैं, जो सांता आना है वो कैटाबैटिक विंड, चूंकि पहाड़ी एरिया से उतर के आ रही है, तो अगर जैसे ये माउंटेन है और विंड ऐसे आती है, सो दिस इज कॉल्ड एज कैटाबैटिक विंड्स, ओके, ये ज्योग्राफी का टर्म होता है। और अगर ऐसे ऊपर चढ़ती है, सो एनाबैटिक कहते हैं, एनाबैटिक विंड्स, हाँ,
ओके, सो दिस इज यू शुड बी नोइंग. और जो सैंटा आना है, सैंटा आना, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबैटिक विंड्स. Is there any specific name for Pacific winds? नहीं, प्रियांशी, we are not going in detail. Generally जो ला नीना नॉर्मल कंडीशन होता है वो ट्रेड विंड्स की वजह से होता है. But El Nino happens because of some unexplained reason. तो उतना डिटेल आपको नहीं जानना है, ठीक है? No need to go in that detail. ठीक है? Otherwise I need to explain the concept of El Nino in detail. ठीक है? Okay, so I think it's clear, है ना? तो कैटाबैटिक विंड जो है डाउन स्लोप जाती है ना? So that is what you should know. So जितना आपका रिक्वायरमेंट था ना, whatever was the requirement, I have already explained. Now one thing, this is a homework, ठीक है? And once the class is over, you will be provided recorded video. तो उसमें नीचे में आप कमेंट में आंसर लिखिएगा. The new chairman of ISRO, Indian Space Research Organization. So this is all about today's class. Now I'll be meeting you tomorrow with a very important class. कल 6 बजे क्लास होगी, Sustainable Development Goals. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम में आए हैं. It was asked in different exams. अगर आपने pre-IQs उठा के देखा होगा SDG, so you should know. ठीक है, कमेंट कीजिएगा नीचे क्लास ओवर होने के बाद कमेंट्स में. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.